Hello everyone. Here is the next topic in grammar series. This is phrases. इस तो पहले clauses and tenses आप already cover कर चुके हैं. But I would suggest कि before watching this video, a complete overview of English grammar इस title ਦੀ ਜਿਹੜੀ video ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, because grammar ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ topic start ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ basic जो टर्म्स या कंसैप्ट्स पता होने चाहिए वो सारे एक्सप्लेन्ड है. सो अज्यूमिंग दैट यू नो दैट बेसिक टर्म्स ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक शुरू करते हैं विच इज phrases. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ मीनिंग टाइप्स phrases समझ आ जाएंगे and you will get to know कि how to identify a particular type of phrase in a sentence. So let's get started. What is a phrase? A group of words. Phrase है कि a group of words. Okay, इस तो पहले sentence ते clauses जे तुसी कीते होए आ तो ये पता होएगा कि sentence भी एक group of words या clause भी एक group of words या तो फिर फर्क की है तिन्ना दे विच. देखो sentence दा सब तो पहला अलग कर दियो कि जेदा complete thought और meaning जेदे तो express हुंदा वो हो गया एक sentence. Clause ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ. ਫਰੇਜ਼ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੀ. A finite verb is a verb that shows tense and can become the main verb of a clause. Simply की चीज़ याद रखनी है कि अगर तुसी sentence read कीता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ verb देखी, अगर तो verb tense ਦੇ according या फिर subject ਦੇ singular plural ਹੋਣ ਤੇ depend ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ change ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ finite verb ਆ, otherwise non finite ਆ. एग्जाम्पल, she was trying to solve the problem. अगर तुसी सीधा इस सेंटेंस ਨੂੰ ਪੜੋ तो तुसी की आइडेंटिफाई करोगे कि trying एक वर्ब है, राइट, solve एक वर्ब है. पर अगर तुसी देखो कि she was trying ये past continuous ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, tense was भी helping verb है, main action verb no doubt try ही हैगा आ, पर complete verb किद्दां ਬਣੂਗੀ was trying ਦੇ ਨਾਲ. तो verb ਦਾ ਇੱਕ phrase ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, was trying, एक complete verb ਆ. अगर she ਦੀ जगह they आ जावे, they were trying to solve the problem. देखो solve ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पिया, although solve एक verb, solve भी एक verb पिया, पर was ਦੀ जगह verb बन गया she ਦੇ change ਹੋਣ ਨਾਲ. अगर मैं tense change करा, इनू present कर दईए, she is trying to solve the problem. was ਦੀ जगह की आ गया is, ਇਹਦਾ मतलब was change हो गया. तो ਜਿਹੜੀ verb change हो रही है was trying, अगर simple past ਹੁੰਦਾ she tried, trying ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ tried, तो it means ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ words ਆ ਇਹ vary ਕਰਦੇ ਆ according to tense and number of singular plural ਹੈ, subject ਦਾ number ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ depend ਕਰਦਾ. but to solve as it is ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ. ਇਹਦਾ मतलब to solve, ਜਦੋਂ verb complete ਇੱਕ topic ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ non finite ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 + b ਹੁੰਦਾ. ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ phrase ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ finite verb ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ non finite ਆ. she wants to study, ਅਗਰ past ਹੁੰਦਾ she wanted to study ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, to study as it is ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ want ਦਾ wanted बन गया, it means wants की हो गई finite verb हो गई. ठीक है. ओके, ये समझन तो बाद हम देखो की है कि phrase की है that does not have a subject verb combination. पहली गल तो ये हो गई. दूसरी, does not make a complete sentence. Third, but still has a meaning. कुछ ना कुछ meaning जरूर बनता है ਉਹਦਾ पूरे sentence ਦੇ ਵਿੱਚ. complete meaning नहीं हैगा but still it has a meaning.
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਇਨ ਦ ਰੂਮ, ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਟੂ ਵਿਨ ਦ ਮੈਚ, ਰਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਪਾਰਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਆ, ਇਹ ਫਰੇਜ਼ਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਮ ਮੀਨਿੰਗ। ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਨਾउन, ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਡਵਰਬ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। बट बिफोर दैट फ्रेज के क्लॉज के जे थोनों कन्फ्यूजन होवे तो आ चीज़ चेक कर लो कि सब्जेक्ट वर्ब दा कॉम्बीनेशन बन रहा, तो नहीं, फ्रेज नहीं है, क्लॉज है। कंप्लीट मीनिंग बन रहा, क्लॉज सम टाइम होएगा, जिस तरह सिंपल सेंटेंस जो होंदा है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होंदा है, फ्रेज नहीं हैगा। एग्जाम्पल किया, इन द रूम, क्लॉज किया व्हेन ही केम, ही सब्जेक्ट, केम वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो क्लॉज बन गया। इफ यू सी अ सब्जेक्ट डूइंग एक्शन तो क्लॉज या, अगर वो चीज नहीं है तो फ्रेज या। टाइप्स, 5 टाइप्स या, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, prepositional, ये 5 phrases या। let's see the first one, which is noun phrase। देखो, a group of words या that works like a noun। noun की हुंदा name of a person, place or some emotions, इस तरीके नाल किसी चीज़ का जिहड़ा नेम है ना, उन्होंने असी नाउन कहते हैं। पर ये नेम है ना जिहड़ा, ये ऑलवेज वन वर्ड नहीं हुंदा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुंदा समटाइम। तो असी की चेक करांगे, एक सेंटेंस दे विच अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कम कर रहा है सब्जेक्ट दा या फिर ऑब्जेक्ट दा या फिर कॉम्प्लीमेंट दा, तो वो की होएगा, नाउन फ्रेज होएगा। मोर ओवर उस फ्रेज का जिहड़ा एक मेन वर्ड आ वो नाउन होएगा। बिफोर सीइंग these examples, let me show you this part of the video that I recommended you in starting। की सीगा इस वीडियो दे विच आपां समझिया सी उत्थे कि सब्जेक्ट जिहड़ा आ एक फंक्शन आ, कौन ये फंक्शन कर सकदा आ, आइदर नाउन और प्रोनाउन, मीनस एक रोल आ सब्जेक्ट, एक सेंटेंस दा फंक्शनल पार्ट आ, एक रोल आ, ये रोल कौन प्ले कर सकता, आइदर नाउन और प्रोनाउन। वर्ब, वर्ब ही करेगा। ऑब्जेक्ट दा काम कौन कर सकता, या नाउन या प्रोनाउन। कॉम्प्लीमेंट दा काम कौन कर सकता, कोई नाउन हो सकता, कोई एडजेक्टिव हो सकता, या फिर कोई फ्रेज हो सकता जिहदा मेन पार्ट प्रेपोजिशन होए, मीनस एक प्रेपोजिशनल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकती है। इसी तरह मॉडिफायर एक एडजेक्टिव हो सकता, एक एडवर्ब हो सकता, एंड सेम थिंग पार्ट ऑफ फ्रेज, अ प्रपोजिशन विच विल बी अ पार्ट ऑफ फ्रेज, और पूरा फ्रेज का काम करेगा मॉडिफायर का। ये चीज़ां की हैगियां हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट इन ब्रीफ हियर। ओके, सो नाउन फ्रेज कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। देखो, सब्जेक्ट है, सब तो पहले वर्ब देखेंगे अपन, इज प्लेइंग, ये वर्ब नू कर कौन रहा, बॉय, तो डूअर ऑफ वर्ब की हुंदा सब्जेक्ट। पर इत्थे बॉय सिंपली बॉय नहीं लिखा होया, द टॉल बॉय, पूरी उहदी डिस्क्रिप्शन दी हुई है एक, द टॉल बॉय। हुणे नाउन फ्रेज आ बिकॉज एक नाउन की जगह आया होया, सब्जेक्ट कौन हुंदा, एक नाउन, एक सब्जेक्ट हो सकता, तो नाउन फ्रेज द टॉल बॉय। मोर ओवर इहदा एक मेन वर्ड जिहड़ा आ वो एक नाउन आ, बॉय इज अ नाउन, और इस नाउन दे अराउंड इस फ्रेज नू बिल्ड किया गया है। आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सॉ ऑब्जेक्ट हुंदा आ वो वाला नाउन या प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब। सॉ द डायरेक्ट एक्शन कहते आ रहा, गर्ल, गर्ल इज अ नाउन, and the phrase built around this noun is noun phrase, and it is working as a object in the sentence। he is a great leader, leader की है noun, a great leader, this is a complete phrase। एक काम कदा कर रहा, compliment, compliment हुंदा ना, सब्जेक्ट दी स्टेट नू डिस्क्राइब कर रहा होएगा जिहड़ा, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, मीनिंग कंप्लीट करता है ਇਹ सेंटेंस ਦਾ, तो कंप्लीमेंट आ। ही इज अ ग्रेट लीडर, ये पूरा नाउन काम कर रहा कंप्लीमेंट का। होर की है, मेन बेसिक कॉन्सैप्ट की है
एक नाउन होएगा नाल उहदे मॉडिफायर्स होणगे, तो एक नाउन फ्रेज बन जाएगा। ओके, ये चीज़ ब्रीफ दसी है, डिटेल्स तुहानूं पता होनी चाहिए है। एडजैक्टिव फ्रेज, फ्रेज जिहड़ा डिस्क्राइब करे नाउन नूं, देखो एक एडजैक्टिव दा काम ही की हुंदा आ, नाउन नूं डिस्क्राइब करना, उहदी होर इन्फॉर्मेशन देना। द बॉय विद अ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। द बॉय, दिस इज नाउन, ऑल्दो इत्थे भी नाउन एक फ्रेज आ, ये तो हो गया नाउन। हुण इस नाउन नूं कौन डिस्क्राइब कर रहा, ये वाला फ्रेज, ये फ्रेज की आ विद अ ब्लू शर्ट। नो डाउट शर्ट इज ऑल्सो अ नाउन, पर इत्थे ये काम की कादा कर रहा, फंक्शन की प्ले कर रहा है, की रोल प्ले कर रहा, वो हैगा एडजैक्टिव दा। विद अ ब्लू शर्ट, इस करके एडजैक्टिव फ्रेज है हियर। इज माई ब्रदर, द बॉय विद अ ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। नेक्स्ट, शी वोर अ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क। ड्रेस नाउन है, इस नाउन नूं कौन डिस्क्राइब कर रहा, ये वाला फ्रेज। इस फ्रेज का नो डाउट नाउन एक मेन एक वर्ड हैगा सिल्क, पर मेड ऑफ सिल्क ये पूरा फ्रेज कादा काम कर रहा, एडजेक्टिव दा, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग दिस अनदर नाउन। ये नाउन की जगह नहीं आ रहा, जो नाउन की जगह आ गया हुंदा फिर इन्हें नाउन बन जाना सी, पर फिर नाउन फ्रेज होना सी, बट इत्थे की है ड्रेस नू डिस्क्राइब कर रहा है, इस करके की है एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन नू डिस्क्राइब करने वाला कौन हुंदा, एडजेक्टिव। या फिर तुसीं इहनूं इस तरीके नाल भी देख सकते हैं कि विच वन, द बॉय, विच बॉय विद अ ब्लू शर्ट, ड्रेस, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, मेड ऑफ सिल्क। जिहड़े फ्रेजेस या वर्ड्स इन्हां क्वेश्चन के आंसर करन, उन्हां नूं असीं एडजेक्टिव फ्रेज कहने आ। नेक्स्ट, एडवर्ब फ्रेज। हुण एडवर्ब दा काम की हुंदा आ, वर्ब या फिर एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब नू मॉडिफाई करना। देखो एडवर्ब ना दसदी है, जो वर्ब नू एक्सप्लेन करती है या वर्ब नू मॉडिफाई करती है, तो दसदी है कि वर्ब दा मैनर की सी, वर्ब किस टाइम की गई, उहदा प्लेस की सी, इदां दे जिहड़े इनफॉर्मेशन दवे ना वर्ब दे बारे, उहनूं आपां एडवर्ब कहने आ। तो जिहड़ा फ्रेज है सारी इनफॉर्मेशन दवे, उहनूं एडवर्ब फ्रेज कहांगे। एग्जाम्पल की हैगियां इहदियां, ही स्पोक, हुण ये तो वर्ब हो गई स्पोक, सबजैक्ट हो गया जिहड़ा ये डूअर ऑफ दिस वर्ब आ। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, मैनर की है इस वर्ब दा, हाउ ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, ये सारा की हो गया एडवर्ब फ्रेज। शी फिनिश्ड वर्क very quickly, finished, how she finished the work, very quickly। तो ये दो वर्ड्स की हो गए एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि वर्ब नु डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्ब नु मॉडिफाई कर रहे हैं। आई विल मीट यू इन द इवनिंग, व्हेन द आंसर कर रहे हैं ना, ये इन द इवनिंग, ये हो गया फ्रेज। केड़ा फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट इज वर्ब फ्रेज। देखो वर्ब फ्रेज बड़ा सिंपल है कि वर्ब दा कंप्लीट जी वर्ब है ना, समटाइम वर्ब एक वर्ड हो सकती है, लाइक शी प्लेज, प्लेज एक वर्ड हो गया, वो वर्ब या मेन वर्ब। पर कई टेंसेस दे विच वॉइस जिहड़े आ मॉडल्स आ, उन्हां दे विच हैल्पिंग वर्ब नाल हुंदी है, दा स्ट्रक्चर ये हुंदा हैल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हियर शी इज प्लेइंग, ये होगी हैल्पिंग वर्ब, प्लेइंग होगी मेन वर्ब। तो कंप्लीट है वर्ब। जो तुहानूं कोई पूछे ना कि इस सेंटेंस विच वर्ब किहड़ी आ, तो कल्ला प्ले नहीं कह देना एक्शन वर्ड, इदां नहीं है। इज प्लेइंग कंप्लीट वर्ब है, वर्ब फ्रेज है। दे हैव कंप्लीटेड वर्क, हैव कंप्लीटेड की हो गया वर्ब फ्रेज। ही विल बी गोइंग पूरा फ्रेज है जिहड़ा वर्ब दा काम कर रहा। तो इंपॉर्टेंट हैगा यार टेंस नूं समझण लई, वॉइस नूं ते मॉडल्स नूं, मीनस मॉडल्स या मॉडल्स दोनों प्रोनाउंसिएशन इहदियां ठीक है। देखो जिहड़े आपां ये टॉपिक्स कर रहे हैं ना फिलहाल, पहले सेंटेंस कीता सी, क्लॉज, उन्हें फ्रेजेस, और आने वाले दो होर टॉपिक्स है मॉर्फेम तक,
उस तो पहले वर्ड क्लासेस ते मॉर्फेम में 2 टॉपिक्स हो रहिंदे आ। ये जिहड़े टॉपिक है ना ये बिल्कुल बिगनर लैवल दे हैगे आ। जदों बिगनर लैवल का मतलब ये हुंदा आ कि तुसीं सिर्फ कॉन्सैप्ट्स नूं समझ रहे आ। इत्थे तुसीं देखो हर एक टर्म उहदा मीनिंग ते उहदियां टाइप्स या उहदी किहड़ी पॉसिबल होर टाइप्स बन रही हैं, क्लासीफिकेशनस की है, ये तुसीं पढ़ रहे हैं। जदों इन्हां नूं एक्चुअली यूज़ करना है ना वो हुंदा आ नैक्सट लैवल। मीनस जिहड़ी ग्रामर है ना उहदी यूजेज जदों शुरू हो गई वो एक्चुअली यूजफुल हुंदी है, क्योंकि जदों तुसीं यूज़ करोगे क्वेश्चनस तां ही सॉल्व हुंदे आ। या फिर ग्रामर नूं जो तुसीं यूज़ करना है प्रैक्टिकली आइदर बोलण च राइटिंग दे विच, ते फिर तुहानूं इस तो नैक्सट स्टैप अगे जाना पेगा जिहदे विच तुसीं टेंस वॉइस मॉडल्स इस तरीके के टॉपिक्स करोगे और ये टॉपिक्स तुहानूं ग्रामर दे जिहड़े कॉन्सैप्ट तुसीं सीख लैणे आ ना उन्हां दी यूजेज समझाउणगे। ओके, coming back to the point, which is verb phrase. I hope you got the whole idea, which is a group of verbs working together. Verb ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ group of verbs ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। Okay, next prepositional phrase starts with a preposition। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ start ਹੋਏਗੀ preposition ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ object ਹੋਏਗਾ। preposition ਦਾ object ਹੁੰਦਾ ਆ। preposition plus noun or pronoun, ਇਹ object ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ noun ਜਾਂ pronoun। in the room, in preposition, room ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ object। on preposition, table ਇਹਦਾ object। under preposition, bridge ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ object, under the bridge। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ prepositional phrase ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ मैं तुहानूं दस्सिया सी ना जो आपां ब्रीफ सबजैक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्पलीमेंट ये चीज़ां पढ़ियां सी। कॉम्पलीमेंट दे विच एक आया सी फ्रेज, ठीक है, और मॉडिफायर दे विच भी एक फ्रेज आया सी। प्रपोजिशनल फ्रेज सी वो एडजैक्टिव का काम कर सकती है या फिर एडवर्ब का काम कर सकती है। ओके, इन्हां सेंटेंसिस नूं देखदे आ जो भी ये 5 टाइप्स तुसीं हुण पढ़ियां ना ये वाली 5 टाइप्स आ नाउन तो लैके एडजैक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रपोजिशनल तक। प्रपोजिशनल फ्रेज है जी फंक्शन जोड़े अगे क्योंकि ये प्रपोजिशन आ जाती है अगे वो फंक्शन एडजैक्टिव तो एडवर्ब भी होंगे आ। इन्हां 5 फ्रेजिज नूं सेंटेंसिस दे विच किद्दां आपां आइडेंटिफाई करते हैं। लैट्स सी दैट। ऑलरेडी फ्रेजेस जोड़े आ वो हाईलाइट किए हुए हैं, बस इन्हां दी टाइप दसनी है। द बॉय विद करली हेयर वॉन द रेस। देखो वॉन इज अ वर्ब, हु इज डूइंग दिस वर्ब द बॉय, ये हो गया नाउन फ्रेज। बट इस नाउन फ्रेज नूं कौन डिस्क्राइब कर रहा विद करली हेयर, बॉय दी होर डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा, ये वाला फ्रेज दे रहा ना, तो एक ही हो गया एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, राइट। जस्ट शॉर्ट फॉर्म दे विच लिख रही है एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर सनसेट। रीच्ड ए वर्ब या इस वर्ब दा व्हेन दा आंसर वी रीच्ड, व्हेन वी रीच्ड आफ्टर सनसेट ओदा टाइम दस रहा है ना, तो जिहड़ा वर्ब दा टाइम दसे मोर ओवर वर्ब नूं होर डिस्क्राइब करे वो की हुंदा आ एडवर्ब। तो इत्थे 2 वर्ड्स आ तो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। हुण इज स्टेट आ किहदी स्टेट आ शी दी, शी नूं डिस्क्राइब कौन कर रहा वेरी हार्ड वर्किंग। हुण हार्ड वर्किंग ना एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये पूरा जिहड़ा फ्रेज आ एक किहनूं डिस्क्राइब कर रहा शी नूं, ठीक है। तो एक ही हो गया वेरी हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन नूं डिस्क्राइब करने वाला हुंदा ना एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट, ही इज अ डॉक्टर, स्टेट दस रहा, कॉम्पलीमेंट आ ये। कॉम्पलीमेंट की जगह कौन कौन आ सकता, जिस तरह इत्थे भी ये वेरी हार्ड वर्किंग जिहड़ा है कॉम्पलीमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा। ही दी स्टेट आ, हुण ही बारे कौन दस रहा, ये वाला फ्रेज, ये फ्रेज की है, इसका मतलब एक कॉम्पलीमेंट आ।
पर ये फ्रेज है केड़ा, इस फ्रेज का मेन वर्ड केड़ा आ, डॉक्टर, विच इज अ नाउन। तो एक हो गया नाउन फ्रेज। इन्हां दो एग्जाम्पल्स ना बड़े ध्यान नाल देखो। शी इज हैगा भी कॉम्पलीमेंट है, हैगा भी कॉम्पलीमेंट आ, दोनों कॉम्पलीमेंट्स है, पर कॉम्पलीमेंट का काम कौन कर सकता है, एक एडजेक्टिव भी कर सकता है, एक नाउन भी कर सकता। इत्थे एडजेक्टिव है बिकॉज वेरी हार्ड वर्किंग आ, ठीक, हार्ड वर्किंग अपने आप च एडजेक्टिव हैगा आ, वेरी इनू मॉडिफाई कर रहा होर, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। डॉक्टर एक नाउन आ, अ डिटरमिनर आ, आर्टिकल डिटरमिनर दी अगों होर स्पैसिफिक टाइप आर्टिकल आ, तो ग्रुप बन गया ना वर्ड्स, दो वर्ड्स का ग्रुप बन गया। अ डॉक्टर फ्रेज आ, डॉक्टर नाउन आ, काम ही कर रहा कॉम्पलीमेंट का, इत्थे नाउन है जो कॉम्पलीमेंट का काम कर रहा है, इत्थे एडजेक्टिव है कॉम्पलीमेंट का काम कर रहा, ठीक। ये हो गया नाउन फ्रेज, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आर साइलेंट। इन द क्लासरूम हुण देखो है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज, इन तो शुरू हो रहा द क्लासरूम, पर असीं इत्थे इहनूं सिर्फ प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं कह देवांगे, ये की फंक्शन प्ले कर रहा, की इहदा रोल की है, इत्थे द स्टूडेंट्स नूं डिस्क्राइब कर रहा ना, किहड़े स्टूडेंट्स जिहड़े इन द क्लासरूम आ। सो इन द क्लासरूम की हो गया इत्थे एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। देखो ये वाली एग्जाम्पल्स करवाउण दा मतलब ये है कि तुहानूं प्रैक्टिकली पता लग जाए कि टाइप्स असीं पढ़ लईआं, पर एक्चुअली उन्होंने आइडेंटिफाई किद्दां करना, वो आइडेंटिफिकेशन तां ही होएगी जे तुसीं वर्ड्स दा फ्रेजेस दा एक्चुअल सेंटेंस दे विच फंक्शन समझदे आ। ओके, he may have forgotten the address। may have, may एक मॉडल या मोडाल या, have helping verb या, forgotten हो गई मेन वर्ब, तो ये सारा वर्ब का काम कर रहा, एक ही हो गई एक वर्ब फ्रेज। they worked with full dedication। they worked with full dedication। हुण देखो वर्कड, वर्क एक वर्ब आ, इस वर्ब का मैनर, वर्ब नूं होर कौन डिस्क्राइब कर रहा, विद फुल डेडिकेशन, तो एक ही हो गया एडवर्ब। ओके, द वुमन नियर द काउंटर इज माई आंट। द वुमन नाउन आ, इस नाउन नूं डिस्क्राइब कर रहा द नियर द काउंटर। द वुमन, विच वुमन, नियर द काउंटर, नाउन नूं डिस्क्राइब करने वाला कौन हुंदा, एडजेक्टिव, एक ही हो गया एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट, he ran across the road। he ran across the road। ran वर्ब, इस वर्ब नू कौन डिस्क्राइब, जबकि across जड़ा आ एक प्रपोजिशन आ, यदि ऑब्जेक्ट किया है इस प्रपोजिशन दी रोड, across the road हो गया कंप्लीट एडवर्ब, क्योंकि ये काम किहदा कर रहा, भावें कि प्रपोजिशनल फ्रेज आ, बट ये काम किहदा कर रहा, एडवर्ब दा, इस करके एक एडवर्ब फ्रेज हो गया। ਇਹਦਾ मतलब तुहानूं देखो इन्ना तो समझ आ गया ना कि बिल्कुल क्लीयर कट कोई डिस्टिंग्विशनेस नहीं हैगी टाइप्स दे विच, सीधा सीधा कि असीं दिस एंड दैट वाली डिवाइड कर दईए, इस तरह नहीं, पर ये सानूं समझ आ जाता, किद्दां समझ आउंदा, वर्किंग ते डिपेंड करता, कोई फ्रेज या कोई वर्ड या काम की कर रहा, बस वो देखो। शी बिकेम अ टीचर, हुण टीचर नाउन आ, एक किहनूं डिस्क्राइब कर रहा, किहनूं कॉम्पलीमेंट कर रहा, शी नूं, बिकेम तो वर्ब हो गई, ये तो मेन चीज़ है। शी बिकेम अ टीचर, तो अ टीचर इत्थे की हो गया नाउन फ्रेज, ठीक है। आई होप तुहानूं ये सारा समझ आ गया। अगर कुछ नहीं समझ आया ये विचों, कोई कॉन्सैप्ट, कोई टॉपिक या कोई टाइप पर्टिकुलरली नहीं समझ आई, तो कॉमेंट बिलो, I will try to explain there. Thank you for watching.